See the page replacement algorithm again. In the event of when a page fault occurs, replace that page which is not used for longest duration of time in the future. Previous, we are taking here 4 frames. 4 frames are available. The memory strings, the reference strings are 701204230321201701. First request for 7 occurs. Previously it was not in the frames. That's why one page fault for 7. Again 0 comes. Previously it was not. So one page fault for 0. Again 1 comes here. No, previously it was not in the frames. So one page fault for 1. Again 2 comes, but previously it was not. So what one page fault for page number 2. Again 0 comes. Previously it was existing in the frames. That's why no page fault for 0. Again 3 comes. Again 3 comes. But previously it was not on the frames. So that's why one page fault occur for page number 3. Which page you will replace? You are applying page replacement algorithm. You will replace the page which are not used for longest duration of time. So check all the pages which are previously existing in the frames. These pages are 701 and 2. Which page you will replace in among 701 and 2? Which page you will replace? Check here. After 3 you will check all the pages in the moving direction. After 3 check here. 0 occurs, so no 0 will be replaced. Again 2 comes before, so no 2 will be replaced. Again 1 comes, so no 1 will be replaced. 7 comes at last, so 7 will be replaced because it is not used for longest duration of time. That's why 7 will be replaced. So 7 will be replaced from 3. Again 0 occurs, but 0 previously was in the frame, so no page fault for 0. Again 4 comes. Again 4 comes. So page fault occurs for page number 4. Which page you will replace? See all the page that was previously existing in the frames. That this page was 3012. Which page you will replace among 30 and 2, 1 and 2? See in the moving direction after 4. See in the moving direction all the pages. All the pages 2 comes recently, so no 2 will not replace. Again 3 comes. 3 comes. So 3 comes. So 3 will not replace. See here. Again 0. Again 0. So no 0 will not replace. Again 1. At among these pages 301 and 2, which come at last after 4? This one comes at last. Before 0, before 0, before 0, 2 and 3. 1 occurs at last. That's why 1 is not used for longest duration of time. So 1 will be replaced from 4. So 4 comes at position number 1. So one page fault for page number 4. Again 2 comes, but 2 already existing in these frames. See here, these 2 already existing. So no page fault for page number 2. Again 3 comes, but this 3 is already existing in the frames, the given frames. So no page fault for page number 3rd. Again 0 comes. This 0 already existing in the given frames, so no page fault for page number 0. Again 3 already existing, so no page fault for 3. Again 2, again 2 already existing in the frame, so no page fault. Again 1 comes here at this position. Again 1 comes, but this one is not existing in the given frame, so one page fault for frame number 1 occurs. Which page you will replace? See all the pages that are previously existing in these frames. 3, 0, 4 and 2 already existing. So among these frames 3, 0, 4 and 2, this page you will replace. You will replace 2. You will be replaced 2 because 1 occurs. After 1, see all the pages in the moving direction. After 1, 2 comes. So no 2 will not replace. After 2, 0 occurs. So 0 will not replace. Again
again after zero it comes here 1701, but here page was 204 and 3, 2 and 0 it comes before recently it are using recently, that's why we will not replace 2 and 0. See other pages 4 and 3, check here which comes before 4 or 3, 4 or 3. See in the circular direction, see you can see, देखिए यहाँ पे क्या किया, आपको पेज नंबर 1 को रिप्लेस करना है, तो पेज नंबर 1 को रिप्लेस करना है तो इसके अंदर पहले से कौन कौन से पेजेस थे, 3 था, 0 था, 4 था और 2 था। तो 1 के बाद देखिए जरा इन फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर मतलब क्या होता है आगे, पास्ट मतलब क्या होता है पीछे, तो फ्यूचर मतलब आगे। देखिए इन चारों पेजेस में से कौन सा पेज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक यूज नहीं हो रहा है। अब देखिए 2 तो अभी तुरंत ही यूज होने वाला है तो 2 को नहीं रिप्लेस करेंगे, और देखिए इसके तुरंत बाद 0 यूज होने वाला है तो 0 को भी नहीं रिप्लेस करेंगे। देखिए ना तो 4 दिख रहा है इसके आगे, ना तो 3 दिख रहा है इसके आगे, देखिए नहीं दिख रहा है ना 1 के बाद, तो या तो 4 रिप्लेस होगा या तो 3 रिप्लेस होगा, इतना श्योर हो गया। तो अब जाइए यहां तक देखिए तो नहीं मिला, अब सर्कुलर डायरेक्शन में चले जाइए, क्या करिए सर्कुलर डायरेक्शन में चले, सर्कुलर डायरेक्शन में चले गए तो हम इनिशियल से देखने लगेंगे, ऐसे घूम जाएंगे। मतलब क्या होगा कि आप चले जाएंगे किस डायरेक्शन में, सर्कुलर डायरेक्शन में, तो आपको सर्कुलर डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जब आप सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे यहाँ जाएंगे तो ये बताइए 4 पहले आएगा कि 3 आएगा, पहले 701 203 पहले 3 आएगा कि पहले 4 आएगा, पहले 3 आएगा ना, पहले 3 आएगा कि पहले 4 आएगा। तो आप यहाँ देखिए पहले कौन सा आ रहा है, पहले 3 आएगा। जब आप आगे वाले फ्रेम्स को देखेंगे तो जो फ्रेम्स आगे तक, जहां तक एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग है वहां तक देखेंगे, जो फ्रेम सबसे लास्ट में यूज हो रहा होगा उसी फ्रेम्स को आप रिप्लेस करेंगे। बट अगर आप सर्कुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो पेज, जो पेज आपको पहले मिल जाएगा उस पेज को आप रिप्लेस करेंगे। तो अभी तक आप देखे थे जब आप 1 से मूविंग डायरेक्शन में आगे जा रहे थे तो 2 और 0 तुरंत ही यूज होने वाला है, तो 2 और 0 को नहीं रिप्लेस करेंगे। फिर आप यहाँ तक गए, एंड हो गया स्ट्रिंग को, आपको पेज नंबर 4 और 3 नहीं मिला, तो 4 और 3 में से कौन सा रिप्लेस होगा ये पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, सर्कुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे। सर्कुलर डायरेक्शन में जाने के बाद जो पेज, उन बचे हुए पेजेस में से जो पहले मिलेगा उसी पेज को रिप्लेस करेंगे। तो किसको रिप्लेस करेंगे, पहले कौन पड़ेगा, 3 पड़ेगा या 4 पड़ेगा, पहले 3 पड़ेगा ना, पहले 3 पड़ेगा तो कौन पहले यूज होगा, कौन रिप्लेस होगा, तो 3 को आप रिप्लेस करें। सर्कुलर डायरेक्शन में जाने के बाद रिमेनिंग बचे हुए पेजेस में जो पेज पहले आएगा उसको पहले रिप्लेस करेंगे। तो 3 और 4 यही बचा था दोनों आफ्टर एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग के बाद, तो कौन सा रिप्लेस होगा, किसको रिप्लेस करेंगे आप, किसको रिप्लेस करेंगे, 3 को रिप्लेस करेंगे। हमने पहले बताया जब आप सर्कुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो बचे हुए पेज में से जो पेज पहले मिलेगा उस पेज को आप पहले रिप्लेस करेंगे। तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा, 3rd नंबर वाला पेज रिप्लेस होगा। 3rd 4 से पहले आया तो 3rd को रिप्लेस कर देंगे 1 से, और एक पेज फॉल्ट अगर हो जाएगा किसके लिए, 1। अगेन 2 occurs but 2 already existing in these frames, so no page fault for 2। अगेन 0 0, देखिए 0 आया ना, बट पेज, बट देखिए 0 पहले से अगर हो रहा है कि नहीं, 1042 ये पहले से अगर हो रहा है तो 0 है कि नहीं, तो कोई पेज फॉल्ट 0 के लिए आएगा नहीं, आएगा ना, तो कोई पेज, नो पेज फॉल्ट फॉर 0। अगेन क्या आ गया, अगेन क्या आया, यहाँ पे 1 आया ना, 1 आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर 1 इन मूविंग डायरेक्शन वो सारे पेजेस देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा पेज जो है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक फ्यूचर में यूज नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा पेज है, ऐसा कौन सा पेज है, इन पेज में से देखना है आपको 1042 में से। देखिए ये जो आपका यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब जो आपका यहाँ 7 अगर हुआ है, ये 7 पहले से इसके अंदर था नहीं, 1042 पहले था, अब आया कौन सा, 7 आया, तो कोई ना कोई पेज एक तो रिप्लेस होगा तभी तो 7 इंसर्ट करेगा।
तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट से दैट इट इज नॉट डिस्प्ले रिप्लेस द पेज विच इज नॉट यूज फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो पेज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक यूज नहीं होगा उसी पेज को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए 0 और 1, 0 और 1 तुरंत ही यूज होने वाला बेटा, तो 0 और 1 को नहीं रिप्लेस करेंगे। देखिए 0 और 1 को नहीं रिप्लेस, अब देखिए यहाँ पे एंड हो गया स्ट्रिंग का, हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे सर्कुलरली, फिर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, और जो पेज रिमेनिंग बचे हुए पेजेस में से होगा जो पहले आएगा उसी को रिप्लेस करेंगे। देखिए आपका 0 और 1 कवर हो चुका है, 0 और 1 7 के तुरंत बाद आ गया था और स्ट्रिंग एंड हो गई थी। इसके बाद जो पेज बचा था वो 2 था और 4 था, तो 2 और 4 में स्टार्टिंग में जाइए। अब यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको सर्कुलर जाना पड़ेगा और जो बचे हुए पेज हैं उन पेजेस में से जो पहले आएगा उसी को रिप्लेस करेंगे। तो बचे हुए पेज आपको कौन कौन से मिले थे, 2 और 4। तो अब देखिए यहाँ से जाएंगे तो 2 और 4 में से कौन पहले आएगा, 2 वाला पहले आएगा ना, 4 से पहले आ रहा है ना 2, तो कौन रिप्लेस होगा, 2 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, सेवन। अरे बात समझ में। अब देखिए अगेन रिक्वेस्ट फॉर 0 occurs but 0 is previously existing in the frames, so no page fault for 0 and no page fault for 1 because 1 already existing, so no page. How many page fault, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अरे बात समझ में। so how many number of total page fault, total age for page fault in the case of when you are applying the optimal page replacement algorithm. See another example. See another example. See another example. See here. See. See another example. Suppose again, but previously the number of frames was 4. 4 empty frames was available. Now we are taking 3 available frames. Now we are taking 3 available frames. We are taking the same reference string, but here number of frames available is 3. Previously it was 4. See the how many number of page fault. See here. First 7 was not previously in the frames, so 1 page fault for 7. Again 0 occurs, previously it was not in the frames, so 1 page fault for 0. Again 1 occurs, previously it was not, so 1 page fault for 0 1. Again 2 occurs, which page you will replace, take here, कौन सा रिप्लेस करेंगे आप। देखिए इसमें कौन कौन से पेज पहले से थे, 701, कौन सा रिप्लेस करेंगे आप। देखिए कौन सा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक यूज नहीं हुआ, देखिए 0 तुरंत ही यूज होने वाला है और 1 भी यूज होने वाला है, सबसे लास्ट में कौन सा यूज होगा, 7 वाला, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 7 वाले को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 7 को देखिए रिप्लेस करके क्या ला दिए 2, 2 पहले से नहीं था तो एक पेज फॉल्ट आ गया इसके लिए। फिर कौन सा आया 0, पहले 0 था नहीं था, पहले 0 था, हाँ पहले था 0, तो नो पेज फॉल्ट। अगेन 3 कम्स, पहले से आगे पहले से ही 3 था, पहले से क्या है 3 था, पहले से 3, पहले से जो है आपका, पहले से यहाँ पे 3 नहीं था तो क्या होगा, यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे एक पेज फॉल्ट आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जो है पेज फॉल्ट होगा क्योंकि 3 पहले से अगर नहीं है इवेंट फ्रेम्स में। देखिए पहले कौन सा था 0, 0 2 और 1 था, अगेन कौन आया, किसकी रिक्वेस्ट आई है 3, क्या 3 इसके अंदर है नहीं, और फ्रेम्स आपके फुल हो चुके हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, एक पेज को हटाना पड़ेगा। तो किसको हटाएंगे, जो पेज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक यूज नहीं हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा, ये 7 वाला सबसे लास्ट में यूज होने वाला है, तो किसको हटा देंगे, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो आप इन फ्रेम्स में देखिए 201 आफ्टर 3
आफ्टर 3 आप देखिए 0, 1 एंड 2 में किसको हटाना पड़ेगा? देखिए 0 अभी यूज होने वाला है तुरंत, उसके बाद कौन सा यूज होगा? 2 वाला, सबसे लास्ट में कौन सा यूज हो रहा है? 1, तो कौन सा रिप्लेस करेंगे? किसको रिप्लेस करेंगे? 1 को किससे रिप्लेस कर दिया? 3। आ रही बात समझ? फिर क्या आया? 0। अब ये देखिए 0, क्या 0 पहले से था फ्रेम के अंदर? हाँ, 0 पहले से था फ्रेम के अंदर, इसलिए नो पेज फॉल्ट। अगेन किसकी रिक्वेस्ट आई है? 4, क्या 4 पहले से है? नहीं है, तो क्या होगा? पेज फॉल्ट। किसके लिए? 4 के लिए। क्या करना होता है? आपको देखना होता है कि कौन सा फ्रेम जो है सबसे लास्ट में यूज हुआ है, जो पहले से पेजेस हैं उसी पेजेस में। देखिए 2, 0 और 3 कौन सा सबसे लास्ट में यूज हो रहा है? बताइए 2, 0 और 3 में से। देखिए 2 के बाद कौन सा यूज होगा? पहले 2 यूज होगा, फिर 0 यूज होगा, फिर कौन सा यूज होगा? पहले 2 यूज होगा, फिर कौन सा यूज हो रहा है? 3 यूज हो रहा है, फिर 0 यूज हो रहा है। तो पहले पेज कौन कौन से थे? 203 थे। तो सबसे लास्ट में जो पहले से एग्जिस्टिंग पेजेस थे, उन पेजेस में से कौन सा सबसे लास्ट में यूज होने वाला है फ्यूचर में? कौन सा यूज होने वाला? देखो 4 के बाद, 4 के बाद देखो आगे, देखे उसको, पहले 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 0 मिला। तो 2, 0, 3 में से कौन सा सबसे लास्ट में यूज होने वाला है? 0। तो किसको रिप्लेस कर देंगे? 0 को रिप्लेस कर देंगे किससे? 4। पेज फॉल्ट आया। एक पेज फॉल्ट अगर, one page fault occur for frame number 7. Again see the student see here, like that. Again one request for 2 occurs. यहाँ पे 2 की रिक्वेस्ट आई है, तो अब ये बताइए पहले से ये 2 अकर हो रहा था? हाँ, तो यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं होगा। फिर कोई किसकी रिक्वेस्ट आई है? 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो नो पेज फॉल्ट फॉर 3। फिर कौन सा आया? 2 आया। अब जब 2 आया तो क्या पहले से इसके अंदर 2 है? पहले से इसके अंदर क्या 0 आया? 0 आया है, तो क्या इसके अंदर 0 है? नहीं है ना। कौन सा पेज है? 2, 4, 3, तो हटाना पड़ेगा, एक पेज रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। किसको हटाएं? चेक करिए, इसके बाद 0 के बाद देखिए 3, 4 और 2 में से किसको हटाएंगे? देखिए 3 के बाद 2 है और 4, पहले 3 यूज होने वाला है, फिर 2 यूज होने वाला है, और 4 कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो किसको रिप्लेस करेंगे? 4 को। किससे? 0 से। तो एक पेज फॉल्ट अगर हो गया। फिर क्या हुआ? फिर 3 आया, 3 पहले से ही है, तो नो पेज फॉल्ट। अगेन 2 देखा, 2 पहले से ही है, नो पेज फॉल्ट। अगेन 1 आया, अगेन 1 आया, तो पहले से कौन कौन से पेजेस थे? 203, रिप्लेस करना पड़ेगा एक को। तो कौन सा रिप्लेस करेंगे? 203 में से किसको रिप्लेस करेंगे? देखो किसको रिप्लेस करेंगे? देखो यहाँ 2 है, फिर 0 है, 3 यूज ही नहीं होने वाला है, तो किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? किसको रिप्लेस कर दे? यहाँ पे किसकी रिक्वेस्ट आई है? यहाँ पे देखो 1 की रिक्वेस्ट आई है, और यहाँ पे प्रीवियस पेज कौन कौन से थे? 203। तो 203 में से किसको रिप्लेस करेंगे? जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज ना हो रहा हो फ्यूचर में। तो यहाँ 1 के बाद चेक करो, 1 के तुरंत बाद 2 यूज होने वाला है, तो 2 को तो नहीं हटाएंगे ना। 2 के बाद 0 यूज होगा, और 3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो किसको हटा देंगे? 3 को। 3 को हटा के क्या ला देंगे? 1। तो क्या करेंगे? एक पेज फॉल्ट अगर होगा 1 के लिए, हाँ ठीक है। फिर क्या आया? 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा था, तो 2 के लिए नो पेज फॉल्ट। अगेन 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा था, तो नो पेज फॉल्ट। अगेन क्या आया? 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, नो पेज फॉल्ट। अगेन क्या आ गया? 7। अब देखो 7 आ गया, तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि 7 जो मेन 7 अगर स्ट्रिंग एंड हो गई है, तो आपको सर्कुलरली स्टार्ट करना पड़ेगा बिगिनिंग से। अब चेक करेंगे कि कौन सा पेज जो है पहले आया है, तो चेक करना पड़ेगा 1, 0 और 2 में से। अगर बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, आफ्टर एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग अगर बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो पेज पहले आएगा उसी को रिप्लेस कर देंगे। तो जो पेज आपको दिखेगा उसी को आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप उसी पेज को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये है आपका क्या? पेज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसी वे में आपको क्या करना है? पूरा इसी वे में आपको क्या करना है? इसी वे में आपको पूरा का पूरा एल्गोरिथम अप्लाई करना है।
जिस पेज की रिक्वेस्ट आई है अगर वो पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा प्रीवियसली फ्रेम्स के अंदर, तो हम उसके आगे वाले फ्रेम्स को देखेंगे और जो फ्रेम्स जो पहले से अगर हो रहा है फ्रेम पेज, उस पेज में से जो सबसे लास्ट में यूज हुआ होगा उसी पेज को हम क्या कर देंगे, उसी पेज को हम क्या करेंगे, उसी पेज को हम वहां रिप्लेस करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जो क्या किया है, हमने वही काम किया है कि जो पेज जो पेज जहां से स्टार्ट हो, अगर मान लीजिए जिस पेज की रिक्वेस्ट आई है उसके बाद वाले सारे पेजेस को देखेंगे और जो पेज उस फ्रेम के अंदर पहले से था उस पेज को देखेंगे और जो पेज सबसे लास्ट में यूज हुआ होगा उसी पेज को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे, आप देखिए जब आपका पेज नंबर यहाँ पे था तो आपने यहाँ देखा जब पेज नंबर 7 आपका यूज हुआ, मूविंग डायरेक्शन में गए, तो मूविंग डायरेक्शन में जाने के बाद आपको कौन कौन से पहले से पेज एग्जिस्ट हो रहा था, एक तो पेज नंबर 1 एग्जिस्ट हो रहा था, एक 0 एग्जिस्ट हो रहा था और एक कौन सा एग्जिस्ट हो रहा था, 2 वाला। एक तो 0 एक तो 1 और एक 2, ये पहले से एग्जिस्ट हो रहा था। तो जाइए सर्कुलरली स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, तो कौन सा पेज इसमें सबसे लास्ट यूज हुआ है, तो पहले से पेज है 0 1 एंड 2 में से कौन सा लास्ट में यूज हो रहा है, पहले देखिए पहले कौन सा आया 0, फिर कौन सा आ रहा है 1, फिर कौन सा आ रहा है 2, कौन सा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक नहीं यूज हो रहा है, क्या 0 नहीं हो रहा है, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है 0 1 एंड 2 में से लास्ट में कौन आएगा, अगर बिगिनिंग से करें स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यहीं पे एंड हो गया तो आपको सर्कुलरली बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कौन सा आएगा लास्ट में 2, तो किसको रिप्लेस करेंगे 2 को किससे रिप्लेस कर दिया 7, जब 7 से रिप्लेस हो गया अगेन किसकी रिक्वेस्ट आई, अगेन 7 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पेज फॉल्ट। तो आप काउंट करिए जरा कितने पेज फॉल्ट आए 1 2 3 4, मैंने पहले बताया था यहाँ पे 3 के लिए भी एक पेज फॉल्ट है, तो 5 6 7 8 एंड 9, तो हाउ मेनी पेज फॉल्ट 9 पेज फॉल्ट। तो आपको in the similar way you will find the number of page fault after applying the optimal page replacement algorithm on a given reference system। आपको गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई करना है, फिर आपको क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुए। तो व्हाट इज द पेज फॉल्ट रेट, पेज फॉल्ट रेट इक्वल टू हाउ मेनी पेज फॉल्ट 9 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस 20, तो 9/20 इज द पेज फॉल्ट रेट। ठीक है, अब देखिए थर्ड टाउ, we will see the third page replacement algorithm, that is LRU, means least recently used. This is the LRU. This is the LRU. See here, this is the LRU. In LRU, we start from a given reference string. The reference string is given and the 3 frames are available initially. Initially 3 frames are available, frame number 0 1 and 2. The request for memory reference 7 occurs, but previously it was not existing, so one page fault for page number 7. Again request for memory reference 0 occurs, previously it was not in the frames, so one page fault for 0. Again 1 comes, previously it was not in the frames, so one page fault for memory reference 1. Again 2 comes, but at this position the frames are already filled, no empty frame is available, so you will replace one page based on LRU page replacement. LRU page replacement algorithm says that replace the page which is least recently used. Least recently used means the frames
which are used before all the given frames in the physical memory. So see here, the frames, the memory reference is previously the memory reference that existing in the frames are 7, 0 and 1. 2 occurs. So which frame is recently used? See in the backward direction. From 2, see in the backward direction. Which is used list recently used. This is list recently used. Among 701, which is list recently used. Because one is recently used, 7 comes before 0 and 1. So 7 is the least recently used because one comes recently, after that 0, after in the 7 comes before 0 and 1 and 2, before 0 and 2. That's why 7 is the least recently used. We will replace 7 from 2 because 7 is the least recent. आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो रेफरेंस यहाँ से आया है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना है और जो उस वाले मेमोरी रेफरेंसेस को देखना है जो करेंटली फ्रेम्स के अंदर है। कौन कौन से हैं? 107, इन्हीं में से एक को रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, जो मेमोरी रेफरेंस दिख रहा है आपको उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में देखिए और देखिए कौन सा सबसे पहले आया है। कौन सा सबसे पहले आया है? 7 वाला सबसे पहले आया है, इसके बाद 0 आया है, इसके बाद 1। तो 1 जो है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो 1 को नहीं रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे? लिस्ट वाले को। तो कौन सा रिप्लेस हो जाएगा? 7 वाला। तो 7 को रिप्लेस कर देंगे तो क्या किससे रिप्लेस होगा? तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? 2। अब देखेंगे 0 पहले से ही अगर हो रहा है तो 0 को नहीं रिप्लेस करना है। फिर क्या आया? 3। अब 3 आया, पहले से कौन कौन से पेज थे, कौन कौन से मेमोरी रेफरेंसेस थे? 102 में से एक को रिप्लेस करेंगे। कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है इन तीनों में से? प्रीवियस डायरेक्शन में देखो, मतलब जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, तो 0 क्या है? 0 क्या है यहाँ पे? 0 है मोस्ट रिसेंटली। फिर इसके बाद कौन सा आया? 2 आया है। फिर कौन सा आया? 2 आया। फिर क्या आया? सबसे लास्ट में कौन सा आया? 1। तो आप देखिए 0, 1 एंड 2 में से कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है? कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है? ये 1 वाला, क्योंकि 1 वाला जो है 0 और 2 से पहले आ रहा है। 1 वाला 0 और 2 से क्या हो रहा है? पहले आ रहा है। तो कौन सा रिप्लेस होगा? 1 वाला। 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 3। तो एक पेज फॉल्ट आ जाएगा किसके लिए? 3। फिर अगेन देखा 0, क्या 0 पहले से ही है? हाँ 0 पहले से है, तो नो पेज फॉल्ट। अगेन कौन आया? 4 आया। तो इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से पहले से पेज थे इसके अंदर? 2 था, 0 था, 3 था। कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है? 4 के बाद कौन आया? 0। तो ये मोस्ट है, इसको नहीं हटाएंगे। फिर कौन सा आया है? फिर इसके बाद आया है आपका 3 वाला। फिर कौन सा है? सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? 0 वाला। तो आप ये देखिए फिर कौन सा आया? 2। तो पेज नंबर 0, 3 और 2 में पेज नंबर 203 में से कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है? 4 को देखेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, ये 2 वाला सबसे लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है, इसको रिप्लेस करेंगे। 2 को रिप्लेस करेंगे 4 से, एक पेज फाटा करोगे। अगेन 2 आया। अब देखिए 2 आया तो किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? देखो अभी तो 4 तो तुरंत ही आया है, तो ये तो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है। अगेन 0 है, इसके बाद कौन सा है? 3। तो सबसे लिस्ट वाला कौन सा आया? 3 वाला। तो किससे रिप्लेस करेंगे? 3 से। तो 2 को रिप्लेस कर दिया 3 से। अगेन किसकी रिक्वेस्ट आई? अगेन किसकी रिक्वेस्ट आई है? 3 से। तो कौन सा रिप्लेस होगा? 2
240 में से कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज, जीरो वाला, किसको रिप्लेस करेंगे, जीरो वाले, जीरो को रिप्लेस कर दिया, 3 से एक पेज फॉल्ट आ गया। अगेन कौन आया, जीरो। कौन कौन से फ्रेम पेज मेमोरी रेफरेंसेस हैं, 2 3 4, किसको रिप्लेस करेंगे, 4 वाले को। देखो जीरो के बाद 3 2 4 कौन सा सबसे पहले आया था, 4 वाला, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 4 वाले, ये लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब देखो कौन सा आया, 3 3 पहले से नो पेज फॉल्ट, 2 पहले से नो पेज फॉल्ट, और कौन आया 1, किसको रिप्लेस करेंगे, पहले से कौन कौन से हैं, 0 3 2, तो किसको रिप्लेस करोगे, कौन सा सबसे लास्ट में यूज हुआ, 2 2 पे पहुंचे हो, अब 1 पे पहुंचे हो, तो किसको रिप्लेस करोगे। देखो 2 तो तुरंत ही यूज हुआ था, तो ये मोस्ट रिसेंटली यूज है। इसके बाद 3 यूज हुआ था, सबसे लास्ट में कौन सा यूज हुआ, 0, तो किसको रिप्लेस करोगे, 0 को रिप्लेस करोगे किससे, 1 से, 1 पेज फॉल्ट। अगेन क्या आएगा, 2 आया, अगेन क्या आया, 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है ना, तो 2 क्या हो रहा है, पहले से अगर हो रहा है तो नो पेज फॉल्ट। अगेन क्या आया, 0 0 आया, क्या पहले से है, नहीं है, क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, किसको रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे 0 है, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो 1, 1 के बाद 1 के पहले 2 आया था, 2 से पहले 3 आया, तो कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज हुआ, 1 2 3 में से कौन सा है, 3 वाला, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 3 वाले को रिप्लेस कर देंगे 0 से, 1 पेज फॉल्ट। अगेन कौन सा आया, अगेन कौन सा आया, कौन सा आया, 1 1 पहले से आकार हो रहा, नो पेज फॉल्ट। अगेन कौन सा आया, 7 7 आया, किसको रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, देखो 102 में से कौन सा पहले आया था, ये मोस्ट रिसेंटली यूज है, इसके बाद ये आया, ये है 2, तो कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज है, 2 वाला, किसको रिप्लेस करेंगे, 2 वाले को रिप्लेस कर देंगे किससे, 7। तो हाउ मेनी पेज फॉल्ट, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाउ मेनी पेज फॉल्ट, 12। कितना स्ट्रिंग है, डिफरेंस स्ट्रिंग कितना है, कितना साइज है उसका, 20, व्हाट इज द पेज फॉल्ट, 12 अपॉन 20। तो इसी वे में आपको आपको रेफरेंस स्ट्रिंग दी रहेगी, आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका। अब जो है एक और एग्जांपल, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, अभी देखा था हमने कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आए थे, 12, वही सेम स्ट्रिंग है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, 12 number of page fault when initially 3 frames was available, when number of frames initially 4 frames was, if initially 4 frames are available, then how many page fault, 8 page fault, because if you increase the number of frames then the page fault will be decreased, page fault will be decreased। अब क्या है, अब देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, एमआरयू अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज एमआरयू, एमआरयू क्या बोलता है, मोस्ट रिसेंटली यूज, वहां क्या था, लिस्ट रिसेंटली यूज, यहाँ क्या है, मोस्ट रिसेंटली यूज। इन द इवेंट ऑफ पेज फॉल्ट रिप्लेस द पेज विच हैज मोस्ट रिसेंटली यूज, पहले कितना इनिशियल फ्रेम्स कितना था, 4 4 फ्रेम्स आर इनिशियली अवेलेबल, पेज नंबर मेमोरी रिक्वेस्ट रिफरेंस 7, रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी रेफरेंस 7 अगर पहले से नहीं था तो एक पेज फॉल्ट, फिर 0 आया एक पेज फॉल्ट, 1 आया एक पेज फॉल्ट, 2 आया पेज 1 पेज फॉल्ट, क्या हुआ, पूरा फुल हो गया। अब क्या आया, 2 आया, 0 आया, 0 आया पहले से है, नो पेज फॉल्ट, फिर क्या आया, 3 आया, 3 आया, तो देखो क्या पहले से 3 है, नहीं है, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट अगर होगा। अब क्या करेंगे, एमआरयू अप्लाई करेंगे, एमआरयू अप्लाई क्या बोलता है उसको, एमआरयू ये कहता है कि आप उसको रिप्लेस करेंगे जो मोस्ट रिसेंटली यूज। तो ये बताओ कि ये 3 है, 3 के मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो जरा, कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है, 2107 में कौन सा लिस्ट मोस्ट रिसेंटली यूज है, देखो मोस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, 0, क्यों 0 है, क्योंकि ये तुरंत ही अगर हुआ था, तो ये कौन सा है, मोस्ट, कौन सा लिस्ट वाला है, 7 वाला लिस्ट रिसेंटली यूज है, क्योंकि ये बहुत पहले अगर हुआ था, और 0 क्या है, ये अभी अगर हुआ था तो लिस्ट रिसेंटली यूज है, तो 0 को रिप्लेस कर देंगे 3 से, एक पेज फॉल्ट। अगेन क्या आया, 0 0 आया, अब जब 0 आया तो फिर से पेज फॉल्ट अगर हुआ,
तो कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज है? अब क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, जीरो के तुरंत बाद जीरो के पहले कौन सा तुरंत आया था, तुरंत कौन सा पेज आया था, 3 वाला, तो ये मोस्ट रिसेंटली यूज है कि नहीं है? तो 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 0 से। अगेन क्या आया? 4 आया। अब 4 आया तो फिर अगेन पेज फॉल्ट आ जाएगा, तो किसको रिप्लेस करेंगे? मोस्ट रिसेंटली यूज। किसको रिप्लेस करेंगे? यही है 0 वाला, तो 0 को मोस्ट रिसेंटली यूज, तो इसी को रिप्लेस कर देंगे। अगेन क्या आया? 2, 2 पहले से ही था तो नो पेज फॉल्ट। अगेन कौन आया? 3, 3 आया ना, किसको रिप्लेस करेंगे? तो मोस्ट रिसेंटली है, 2 वाला रिप्लेस हो जाएगा। अगेन क्या आया? 0, 0 आया तो पेज फॉल्ट हुआ, किसको रिप्लेस करेंगे? लिस्ट मोस्ट रिसेंटली वाले को, तो 3 रिप्लेस हो गया। अब अगेन क्या आया? 3 आया। क्या 3 अगर हो रहा है? 3 अगर हो रहा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? मोस्ट रिसेंटली यूज्ड वाले को हटा देंगे। किससे हटाएंगे? इससे हटा देंगे, तो 0 को हटाया, 3 आ गया। फिर क्या आया? 2, 2 आया, तो मोस्ट रिसेंटली वाले को हटाएंगे तो 3 आ गया। अगेन 1 आया, 2 से रिप्लेस किया, 2 आया, पहले से था, 0 आया, फिर 2 से हट गया। फिर क्या आया? 1 आया। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड क्या है? 0, 0 को रिप्लेस, 0 को क्या किया? देखो मोस्ट रिसेंटली यूज क्या है, यहाँ पे आपका 0 आया था, 0 रिप्लेस हो गया 2 से। फिर क्या आया? 1, 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 7 आया, 7 भी पहले से था। फिर 0 आया, 0 भी पहले से था। 1 आया, 1 भी पहले से था। तो टोटल पेज फॉल्ट कितना हो गया? 12। काउंट करो। तो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड वाले में क्या करना है, जो उससे जो मेमोरी, जिस मेमोरी रेफरेंस की रिक्वेस्ट आई है उससे पहले कौन सा आकर हुआ, उसी को रिप्लेस कर। जैसे यहाँ 2 आया था, यहाँ पे मान लो 0 आया था, तो जब 0 यहाँ पे आया था, नहीं यहाँ पे मान लो 3 आया था, तो क्या उसको हटाए? आपने किसको रिप्लेस किया? इसके तुरंत पहले कौन आया, उसी को रिप्लेस कर दिया 3 से। देखो कौन आया था सबसे पहले, इससे तुरंत पहले कौन आया था? 0, 0 को रिप्लेस कर दिया 3 से। अगेन 0 आया, पहले से नहीं था ये, किसको रिप्लेस करेंगे? इसके तुरंत पहले कौन आया था? 3, 3 को रिप्लेस कर दिया 0 से। अगेन 4 आया, इसके तुरंत पहले कौन आया था? 0, 0 को रिप्लेस कर दिया। दिस इज द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। तो सारे हाउ मेनी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? BMC, first one is FIFO, second one is optimal page replacement, third one is LRU and fourth one is MRU। आपको आपको रेफरेंस स्ट्रिंग दी रहेगी, आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फाइंड आउट करना है, और पेज फॉल्ट रेट जो होगा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट divided by the size of the reference string। how many number of memory references? Total 20। so what is the page fault? Page fault equal to number of page fault. What is the page fault rate? Is equal to page fault divided by number of page fault divided by memory string size equal to 12/20। अब देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है थ्रेशिंग। क्या है थ्रेशिंग? व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग is a concept. See here, we are plotting a graph between CPU utilization and degree of multi-programming. What is the number? What is the degree of multi-programming? You have already seen in the CPU scheduling algorithm. What is the degree of multi-programming? Which scheduler controls the degree of multi-programming? Longest job scheduler controls the degree of multi-programming. Degree of multi-programming means how many number of programs currently existing in the main memory, that is known as degree of multi-programming. How many number of program currently existing in the ready queue, that is known as degree of multi-programming. We are plotting a graph between CPU utilization and degree of multi-programming. Suppose initially 400 frames was free,